It's midnight, but as I had promised class 12th that I would be uploading a video before you start preparing for your chemistry tomorrow. The study plan, as I suggest you for the chemistry CBSE paper, that is on 28th of February. All of you are ready with your English paper now. All the best. Hope you all do awesomely well in your first board examination of this year, that is 2023. My good wishes for each one of you class 12 students. Now, the study plan, I need you to mark these important issues. Number one, you will only be doing NCERT line by line. No other book should be touched at this time. My advice is please focus on NCERT line by line, word by word, each and every question, in-text questions, solved questions, NCERT questions. Please do not do the sample papers now. Until and unless you are thorough with NCERT, then you may have a look at sample papers, but I do not advise to do the sample papers in the last 3 days when you are preparing for your chemistry after your English exam, because this generally demotivates you, because there are certain questions which you feel that you may not know, and unnecessary this will decrease your confidence. So I do not advise you to do them now. If you were to do them, that should have been done at least 10 days before this. Coming to organic chemistry, this is normally the area where students struggle. Please do not do any conversions now. For conversions, my advice is that generally a named reaction is involved in the conversion. या फिर कोई एक ऐसा reagent Dibal H, PCC type का reagent is involved in the conversion, or it could be Markovnikov rule, anti-Markovnikov rule types. So please conversions मत करिएगा इन 3 दिनों में. Focus on named reactions, chemical test, physical properties, reasoning question का मैंने recently videos 4 chapter के बना दिए हैं. Half an hour each chapter है, where I've covered all the reasoning questions which are possible and have been asked in the previous year boards. तो अगर आपने नहीं देख पाए हैं तो please have a look at those reasoning questions also. Coming to the physical chemistry, आपके इस कोर्स में 3 चैप्टर्स हैं. सॉलिड स्टेट्स कैंसल्ड है, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स. प्लीज डू नॉट डू एनी न्यूमेरिकल इन दीज डेज. न्यूमेरिकल इस समय करने का टाइम नहीं है. तो आपको क्या करना है, प्लीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला. न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि विच फॉर्मूला विल बी अप्लाइड एंड सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला आफ्टर कन्वर्टिंग. जैसे कि टेम्परेचर है विल ऑलवेज बी इन केल्विन. केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जिसमें आप टेम्परेचर डिग्री सी में यूज़ करते हैं. केल्विन में ही टेम्परेचर यूज़ होता है. आर का वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करना है, वॉल्यूम को लीटर्स में लेना है, सो ऑन सो फोर्थ. आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. इस समय न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व मत करिएगा. मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज. जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं तीनों, उसके जब आप पढ़ाई करेंगे 3 दिनों में तो एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूला ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि एंड में बिफोर द एग्जाम जस्ट एंटरिंग द सेंटर टाइम से जब री रिवाइज करेंगे इन 3 दिनों में तो आप एक बार फॉर्मूला का लिस्ट देखकर एग्जामिनेशन के लिए जाए. आई वुड एडवाइज कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप जब पढ़ रहे हैं इन 3 दिनों में, तो येलो या फिर ग्रीन कलर, थोड़ा हाईलाइटेड कलर रहता है, येलो या फिर ग्रीन कलर का स्केच पेन हाथ में रखिएगा और जो भी आपका वीक एरिया है उसको एक बार मार्क कर लीजिएगा. बिकॉज आप एक बार और रिवाइज करेंगे इन 3-3.5 दिनों में, तब ये आप सिर्फ येलो और ग्रीन सेक्शंस देखकर क्विक एक रिवीजन दे सकते हैं अर्ली मॉर्निंग ऑन 28th. फिनिश द लर्निंग चैप्टर्स फर्स्ट एंड देन यू विल डू द चैप्टर्स विच रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग. हर एक स्टूडेंट को अपने हिसाब से लर्निंग चैप्टर्स लगते हैं. किसी को कोऑर्डिनेशन लगता है, किसी को D&F लगता है, किसी को ऑर्गेनिक लगता है. अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट जो चैप्टर्स में आपको लगता है लर्निंग कंटेंट ज़्यादा है वो पहले करना है, और जिसमें अंडरस्टैंडिंग का कंटेंट है वो आप बाद में करेंगे इन दीज 3 days. नाउ लेट मी गिव यू द प्लान. अकॉर्डिंग टू मी, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री फॉर CBSE एग्जाम 2023 आफ्टर योर इंग्लिश पेपर. इंग्लिश का पेपर 24th को हो जाएगा. आप इंग्लिश का पेपर देकर 1:30 PM पे आपका एग्जाम खत्म होगा. आई एम एज्यूमिंग कि 2:30 तक आप घर पहुंच जाएंगे. 2:32 to 5:30 3 hours है. घर पे डिस्कशन, लंच एंड रेस्ट. 3 hours इज गुड इनफ. इंग्लिश का पेपर है बेटा, ज़्यादा टैक्सिंग नहीं होता है, सो यू शुड नॉट बी टू टायर्ड, बट यू हैव अ 3 hour break from the English to start your chemistry here. So you will begin around 5:30 on 24th of February, where I advise that please do a learning chapter. आपका D&F block requires a lot of learning content.
वो कर सकते हैं। KMnO4, K2CR2O7 का भी लर्निंग कंटेंट बहुत है। एंड आई वुड एडवाइज एक कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर कर लीजिएगा, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर केमिकल काइनेटिक्स, जौन सा आपको अच्छा लगे एक चैप्टर। मीन्स 5:30 से लेके माई एडवाइज इज अप टू 11 PM। 11 PM पे पैकअप कर दीजिएगा। 5:30 से लेके 11 PM तक 5.5 आवर्स हैं, जिसमें से आई एम अज्यूमिंग कि रफली 4 आवर्स आपको D&F पे लगेंगे एंड 1.5 आवर गिव इट टू द फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर। वो वाला फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर कर लीजिएगा जो आपको ईजी लगता है। 25th मॉर्निंग, अब माई एडवाइज इज कि 25th मॉर्निंग से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे स्टार्ट करिए। 4 चैप्टर्स हैं और वो टाइम लेंगे, तो आपके पास फुल डे है। फुल डे में आप अगर 8 आवर्स की स्लीप लेते हैं तो यू आर लेफ्ट विद अराउंड 16 आवर्स। उसके सिवा भी आप 3 आवर्स फर्दर मोर स्पेंड ऑन विद योर फैमिली ऑन TV वॉट, तब भी आपके पास रफली अराउंड 13 आवर्स है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पहली बार तो कर नहीं रहे, तो पर चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए यू हैव अराउंड 3 आवर्स विच इज़ गुड इनफ। थर्ड वाले ऑर्गेनिक एल्डिहाइड कीटोन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अमीन्स में कम टाइम लगता है। सो अकॉर्डिंगली टाइम को डिवाइड करके 25th को ट्राई टू फिनिश योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली। प्लीज़ कीप मार्किंग, येलो या ग्रीन पेन से मार्क करते जाइएगा जो एरिया आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, अभी भी याद नहीं हो रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू 26th को माई एडवाइजेज आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाला चैप्टर करके उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर करिएगा। ये 2 चैप्टर्स करने में हो सकता है कि आपका ऑर्गेनिक 25th को ना खत्म हो और 26th को कैरी फॉरवर्ड हो जाए, दैट इज़ ओके। अगर 3 चैप्टर हो जाते हैं और एक यहाँ हो जाता है तो 26th को भी आप ये एक ऑर्गेनिक का चैप्टर कोऑर्डिनेशन और बायोमोलिक्यूल्स कैन बी डन। प्लस अगर आपको लगता है कि आपका तो हो चुका है तो यहाँ पे आप फिजिकल केमिस्ट्री के आपके अभी भी 2 चैप्टर्स बचे हैं, वो भी आपको यहाँ पर कर सकते हैं। 27th इज़ अ डे जब आपको हाफ डे तक बिफोर लंच तक सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। बिफोर लंच में आपके पास फिजिकल के 2 चैप्टर्स हैं जो कि आप फिनिश करके अपना सिलेबस ओवर कर देना चाहिए बाय 27th लंच। पोस्ट लंच आई वुड एडवाइज यू स्टार्ट विद योर रिविजन ऑफ वीक एरियाज, जो आपने वो येलो एंड ग्रीन स्केच पेन से मार्क कर रखा है, एक बार उसको री गो थ्रू कर लीजिएगा। फाइन। 28th को मॉर्निंग 6 AM to 8 AM प्लीज हैव अ प्रॉपर स्लीप। डू नॉट स्टे अवेक थ्रू आउट द नाइट ऑन द केमिस्ट्री डे। पूरा मेसअप हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। रात भर जगने से केमिस्ट्री नहीं आएगा। हैव अ प्रॉपर रेस्ट, लेट योर ब्रेन keep the learning content and you are able to reproduce the learning content better. So please have a proper sleep. Do not give off your sleep for chemistry. 6 o'clock सुबह उठ के, which means आप roughly around 10 to 11 wind up कर दीजिएगा on 27th। 6 AM पे सुबह उठ के 6 to 8 you have again 2 hours। जौन सा भी कंटेंट इनमें से आपको वीक लगता है वो आप री-रिवाइज कर लीजिएगा एंड विद दैट यू विल एंड हियर। 9 o'clock के करीब आपको सेंटर पे पहुंचना है। सो योर पेपर, योर वर्कअप और योर प्लान टू स्टडी शुड एंड अराउंड 8 AM on 28th, beginning from 5:30 on 24th. So this is my advice to you people how to study for chemistry in the 3.5 days after you give your English ka exam. Last but not the least, I would be posting another video on the question paper attention on 27th of February. Please do watch the video before you go for your exam on 28th. Do well, take care, bless you loads. Bye for night, good night.